Hello, everybody. Good afternoon. Please confirm if my screen is visible. I'm clearly audible. Okay, very fine. So, very fine, guys. So, today we come to an end of our SQL. By now, you have learned SQL to a decent level. We started off with the concept of DBMS, Database Management Systems. Out of several facilities available, we chose to go ahead with MySQL, which is by far the most popular one. Currently. Then we saw that there are four subsets of SQL commands, majorly. We defined them as DDL, DML, DCL, and TCL. So DML and DDL, you have seen a fair bit of them. DCL and TCL में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज. वो क्या होते हैं? DCL is basically data control language. TCL is transaction control language. So we are not going to way too much of depth there, but I'll talk about certain concepts. Right. Then we started off with several DML, which will be the utility of a data analyst. In a role of data analyst, you must be handy with DML majorly. Rest is taken care of by data engineers, so that is a different role. Right. So we learned several clause. काम आसान है, वो देख चुके हो. बेसिकली DML या कहें DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं इनको. बड़ा नपातुला सा सिंटेक्स है. We start off with select clause. We want to select something from something. So select a column from a table. Then there could be condition where some condition is true. Right. Audio is working fine, I think. Okay. Now there could be a group by clause when you want to aggregate this result. So there could be group by, and here would be an aggregate function. What are the aggregate function? We have already seen. So more often than not, we are aggregating a continuous variable when we are grouping by some categorical variable. Yes or no? ऐसे ही होता था. We group by some categorical variable and we aggregate some continuous value. Aggregate function. Now what can be an aggregate function? Aggregate function can be anything. It can be sum, mean, median, count, max, min.
Then there comes order by clause. ये भी देख चुके हो. When you want to sort this data in ascending or descending order, so then we take help of order by clause. By default it is ascending, however you can demand descending also. There came another facility that after ordering by, suppose you are asked about, you don't want to order by the entire data, you want to see after ordering by, you just want to see the top 10 values or maybe top 5 values or maybe or whatever. हाँ जी, क्या क्लॉज आया था वो? Yes, we came to limit clause and I can mention what should be the limit of my display. The data which I have fetched, how many results do I want out of them? And there comes the termination. Among all these, somewhere happened a competition between where and having clause. Now this is a special scenario. Can someone tell me when to use where, when to use having? Can you define it? Can you put it into words? मैं ही पूछ लो तुमसे, वेयर क्लॉज कब यूज करेंगे, हैविंग क्लॉज कब यूज करते हैं? इन अ वे ठीक बात है अभिलाषा, इन अ वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नागेंद्र. बाकी लोग? जैसा नागेंद्र ने बोला, हैविंग क्लॉज तब यूज करते हैं जब मेरी कंडीशन कहाँ हो, इस एग्रीगेटेड वैल्यू पे हो. एग्रीगेटेड वैल्यू ये कब कैलकुलेट हुआ है? दिस इज अ कैलकुलेटेड फील्ड, यस और नो? एग्रीगेशन इज अ कैलकुलेटेड फील्ड, ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था मेरे डेटा में. तो वेयर क्लॉज एसेंशियली वर्क्स ऑन द टेबल अवेलेबल, जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. नाउ दिस फील्ड डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर. ये कब एग्जिस्ट करना शुरू हुआ है? जब ग्रुप बाय हो गया है. तो पहली पहचान तो यही है, हैविंग क्लॉज अगर यूज हो रहा है तो एसेंशियली देयर वुड बी अ ग्रुप बाय. अदरवाइज हैविंग क्लॉज का जरूरत नहीं है, वेयर से आपका काम चल जाता है. हालांकि द परफेक्ट डिफरेंसेस, तो हैविंग इज कंडीशन ऑन एग्रीगेटेड फील्ड, वेयर इज कंडीशन ऑन प्री एग्जिस्टिंग कॉलम. ध्यान रहेगा, बता पाएंगे इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया तो? आफ्टर दैट वी केम ऑन टू सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरी हमने बोला था. नेस्टेड क्वेरी का काम कहाँ पर आया? नेस्टेड क्वेरी का काम कहाँ पर आया?
नेस्टेड क्वेरी का काम दो जगह आया। एक तो देखा था आप लोगों ने कंडीशन डिफाइन करने में, राइट? एग्जैक्टली करेक्ट अभिलाषा। जब मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए, मैंने कहा सैलरी शुड बी दिस देन समथिंग समथिंग, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, मेरे को कुछ वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। एक कंडीशन तो ये हो कि मैंने बोला सैलरी 50,000 से कम होनी चाहिए, लो लिख दिया, लेकिन ये 50,000 कहाँ से आया? सपोज ये 50,000 मेरे को इस तरह से नहीं गिवन है। सपोज मेरे को किसी ने बोल रखा है कि सैलरी ओवरऑल एवरेज सैलरी से कम होना चाहिए, जो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी मिला करके है, उस एवरेज से कम होना चाहिए। तो अब या तो मैं वो एवरेज करके कैलकुलेट करूँ और फिर लिखूँ यहाँ आके कि कितना है, अदरवाइज आई कैन राइट अ सब क्वेरी। यस और नो, यही करना था, ऐसे ही तो किया था। तो ये सब क्वेरी वो कैलकुलेट करके फील्ड ला के देगा यहाँ पर, एंड ओवर दैट फील्ड मेरा कंडीशन सक्सेस हो जाएगा। आई विल नॉट नीड टू कैलकुलेट इट टाइम एंड अगेन। ठीक बात है ये। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और किस काम आ सकता है सब क्वेरी आपके? दूसरे कहाँ काम आता है सब क्वेरी? दूसरा सब क्वेरी काम आता है जब आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन चाहिए, यहाँ पर यू वांट टू सेलेक्ट समथिंग हियर जो प्री एग्जिस्टिंग टेबल में नहीं है। वो किस टेबल में है? वो उस टेबल में है जो किसी सब क्वेरी से रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकाल लाओ और उसमें से कुछ मेरे को सेलेक्ट करना है। समझ पा रहे हो? ये भी तो हुआ था अपने साथ। मतलब ये मत कहना कि ये हैविंग क्लॉज से भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है हैविंग क्लॉज से भी, लेकिन सब क्वेरी से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमसे बोले, हमसे क्या बोला कि मेरे को सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स देखने हैं। कौन से डिपार्टमेंट्स देखने हैं? जिनकी एवरेज सैलरी, जिन डिपार्टमेंट्स में एवरेज सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे कह रहा हूँ इसको? अगर सब क्वेरी से करने लगा तो मैं कैसे कह रहा हूँ इस चीज़ को कि यार एक तो पहले तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लो सारे डिपार्टमेंट्स की। कैसे आ जाएगी? सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यस और नो, पता चल जाएगा। सही बात है। तो एक नई टेबल बन जाएगी यहाँ पे। ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? एक नया टेबल रिटर्न करेगी जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। वो क्या होगा? यहाँ पर तो डिपार्टमेंट नंबर दिख रहा होगा, डी नंबर, और यहाँ पर दिख रही होगी एवरेज सैलरी। तो मैंने क्या कहा, टेबल तो ले लो ये वाली। कौन सी वाली? ये वाली। एवरेज सैलरी को एक एलियास भी दे देते हैं, चलो। तो सेलेक्ट डी नंबर एवरेज सैलरी एज व्हाट, कुछ भी कह लो। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेबल में से क्या सेलेक्ट करना है? इस टेबल में से सेलेक्ट कर दो, चलो एक्सट्रैक्ट कर दो फिलहाल।
एस्ट्रिक्ट कर दो, लेकिन कौन सा, कौन सा, वेयर, वेयर एवरेज सैलरी इज लेस देन 50,000, एंड टर्मिनेट। तो नेस्टेड क्वेरी आप लोगों के इस काम भी आता है। एक टेबल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था, वो टेबल बना लिया नेस्टेड क्वेरी से, और अब उस टेबल के ऊपर बाकी ऑपरेशन वैसे ही काम करेंगे जैसे हर जगह करते हैं। यहाँ पर बस एक काम, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब आप फ्रॉम के साथ यूज़ कर रहे हो, यानी इट इज़ एक्टिंग, नेस्टेड क्वेरी का रिजल्ट इट इज़ एक्टिंग एज अ टेबल, देन यू विल हैव टू गिव इट एन एलियस। यहाँ पर उसके लिए एक एलियस देना पड़ेगा। तो फॉर नाउ आई एम कॉलिंग इट टेबल वन। अगर एलियस नहीं दोगे तो एरर थ्रो करता है। ये भी कुछ देखा था हमने, मेरे ख्याल से देखा तो था बीच में, क्वेरी तो आए थे ऐसे, शायद उस समय एकदम समझ नहीं आया हो, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आने लगेगा, है ना। समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत टपक आ रहा है। तो ये सब क्वेरीज देखे, चलो बहुत बढ़िया है। एंड फाइनली yesterday we came on to joins। जॉइंस हमारे कब काम आए, जॉइंस हमारे कब काम आए, जब मेरे कंडीशंस, या तो मेरे कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, या मेरे को जो सेलेक्ट करना है वो सेटिस्फाई नहीं हो, यानी कुल मिलाकर के मेरे को यहाँ जो टेबल चाहिए होता है, एक टेबल, वो एक टेबल से काम नहीं चल रहा। सो आई विल इंटीग्रेट मल्टीपल टेबल्स with help of join। So I can integrate T1 join T2 on a certain condition, on what condition, that primary key of one table is equal to foreign key of another table। And similarly same on, I can keep on joining multiple tables। So now table 3 on another condition, again a pair of primary key and foreign key, and so on। Within joins हमने देखे थे, there can be multiple kinds of join depending upon the requirement। Sometimes I will need inner join, sometimes somebody may ask me to give left or right join, or sometimes I may need to give full outer join। तो ये सारे मेथोडोलॉजीज अभी तक आप देख चुके हो। अब आगे, अब आगे मैं तो क्या बताऊंगा, पहले तो तुम बताओ, बाकी क्वेश्चन हो गए उसके वर्ल्ड डेटाबेस के, जो 3-4 रह गए थे। एक नहीं हुआ। आओ तो पहले उसी से निपटते हैं। कल हम ये 8 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अच्छा, ये हमने ब्यूटीफाई किया था कल, तो वो भी आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ, क्वेश्चन 9, विच सिटी हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन अमंग द सिटीज। अरे तो ये हुआ नहीं क्या, इसमें क्या नहीं हुआ, अरे इसमें क्यों नहीं हुआ।
हाँ, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट अभिलाषा। इट इज टॉकिंग अबाउट द सिटी जो अभी आप लोगों ने देखी है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। जो क्वेश्चन 8 में आपने सिटीज निकाली हैं, देयर आर 339 सिटीज। तो सिटीज अभी तो आप काउंट कर रहे थे, क्या वो सिटीज की लिस्ट निकल सकती है? निकल सकती है। काउंट करने की जगह सिटीज की लिस्ट निकाल ली। सिटीज की लिस्ट निकाल ली, इट विल कम इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक नेस्टेड क्वेरी डाल दो, मैक्स कैलकुलेट कर लो, उसका मैक्स किसके बराबर है। अरे हो जाएगा कि ना। क्वेश्चन 8 का आंसर काबुल क्यों होगा? नंबर ऑफ सिटीज पूछा है। अरे ये कर रहे थे कल, काउंट की जगह ये कर लो। क्या कह रहा हूँ मैं, सिटी के तो नेम दिखा दो, सिटी, और सिटी की पॉपुलेशन दिखा दो, प्रोवाइडेड। ये आंसर आ जाएगा। क्या पूछ रहा है इसमें? विच सिटी हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन अमंग दीज सिटीज। मिल गई सिटीज। अरे भगवान, मिल गई सिटीज। वेयर क्लॉज लग चुका था, सारी चीजें लग चुकी थी।
तो सिटीज पता लग गई जो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑफ व्हाट पॉपुलेशन, यही पूछ रहा है। अरे यही पूछ रहा है मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डिसेंडिंग। हो गया खत्म। नहीं आया समझ, यही तो पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में। कुछ नया थोड़ी किया है, सारा वही तो किया है जो कल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है मोनिका। इन फैक्ट आई वुड हैव लव टू सी दिस कि अगर ये नेस्टेड क्वेरी से कोई कर पाता। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सेम आंसर इट इज ऑल गुड मोनिका, एंड इन फैक्ट इट इज बेटर because nested query will free you from order by and limit 1, limit 2, limit 3. Limit can only help you if you are finding max or minimum. तो order by ascending और descending करके तुमने टॉप 1 या टॉप 2 या बॉटम 1 या बॉटम 2 ऐसे निकाल लिए। When you are doing nested query, it frees you from everything. Now you can see averages, now you can see medians, now you can see anything, whatever you want. Fantastic, good to see. हाँ जरा पब्लिक पे मारो जरा मुंह पे इनके सब पब्लिक कर दो इसे। देखो निर्लज्जों, देखो तुमने कहा नेम निकाल दो और पॉपुलेशन निकाल दो, कहाँ से निकाल दो? यहाँ से निकाल दो। हाँ एरर देखो क्या है, एरर है पॉपुलेशन इज एम्बिगुअस फील्ड। मल्टीपल टेबल्स में पॉपुलेशन आ रहा होगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन एम्बिगुअस फील्ड हो गया है। परहैप्स। और कुछ किसी का? मोनिका पब्लिक कर दो अपने वाली क्वेरी, पब्लिक चैट में डाल दो जरा। ना ये तरीका अगर डेटा वगैरह मांग रहे हैं तो ठीक है। अभी एक और चीज़ बता रहा हूँ, आई थिंक इट विल कम इन हैंडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
ये कैसे हैंडी आ सकता है? जैसे भी कर रहे हो, नेस्टेड क्वेरी से कर रहे हो वो भी ठीक है, जो लिमिट क्लॉज से किया था ठीक है, चल जाएगा ऐसे केस में, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस. बट नाउ अगेन आई एम शोइंग यू सम ट्रिक. व्हेन नोबडी इज वाचिंग, दीज थिंग्स वर्क. अगर आपको कोडिंग करके दिखानी है फिर तो वो करना पड़ेगा. कोडिंग में दे कैन बी स्पेसिफिक, बट इफ यू आर आंसरिंग एमसीक्यू, चेक दिस आउट. एज सिंपल एज दैट. दिमाग ही नहीं लगाना है. क्या बोला है उन्होंने? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किस सिटी की पॉपुलेशन मैक्सिमम है, और नीचे 4 ऑप्शन है, टिक लगाना है. तो करने मत बैठ जाना उसे. अरे समझ रहे हो? फिर कहानी मत लिखने बैठ जाना, ये ज्वाइन कर लूंगा, वो कर लूंगा, और ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. फ्रॉम सिटी टेबल नेम ले आओ और पॉपुलेशन ले आओ. कौन से? वही. देख लो कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है. खत्म. ठीक है, समझ आ जाता है. बढ़िया. स्मार्ट. हाँ. बीइंग स्मार्ट इज वन थिंग, बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट इज रादर इम्पोर्टेंट. इंजीनियरिंग वाले वही होते हैं. क्वेश्चन 9 हो जाता है. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 में क्या बोलता है? हाउ मेनी रो एंट्रीज आर देयर विद एनी वैल्यू इन द कंट्री टेबल बीइंग नल. अच्छा, कहना क्या चाहता है, कंट्री टेबल में ऐसी कितनी रोज हैं जहां पर कहीं ना कहीं नल आ रहा है. हुआ नहीं है? क्यों नहीं हुआ? आई मीन मतलब वर्बोस है थोड़ा सा, लेकिन वो तो क्या हो जाना चाहिए था. यार कंट्री टेबल में कुछ तो वो होंगे. लिखना कैसे होगा? ऐसे लिखना होगा शायद से. कैसे 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 तो. अच्छा, मैं कब तक लिखूंगा? पर चलो दिखा देता हूँ. कंट्री टेबल में देखो ना, उसने पूछा है नल कौन है, तो इस कंट्री टेबल, ये रही कंट्री टेबल. कंट्री टेबल में कोड में नल है क्या, नेम में है क्या, कॉन्टिनेंट में है क्या? जिसमें कहीं पर है तो वो काउंट हो जानी चाहिए, बाकी काउंट नहीं होने चाहिए. तो कंडीशन मेरी वही हो गई है. तो मैं वही कह रहा हूँ, सेलेक्ट काउंट ऑफ एस्ट्रिक्ट, यानी काउंट कर लो रोज फ्रॉम कंट्री टेबल जहां पर कंडीशन एक ट्रू है. कौन सी कंडीशन? कोड इज नल और नेम इज नल और अगला कॉलम इज नल और दैट कॉलम इज नल और दैट कॉलम इज नल. लिख दो सारे. थोड़ा सा वर्बोस क्वेरी है, लेकिन इम्पॉसिबल थोड़ी है. यस और नो. वेयर क्लोज में कॉड इज नल और नेम इज नल और कॉन्टिनेंट इज नल और रीजन इज नल और सरफेस एरिया इज नल और व्हाट्सएवर इज नल, वो काउंट हो जाए, बाकी छूट जाए. खत्म हो गई बात. वेरी ऑफ. हो जाएगा. हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो बड़ा गधा तरीका लग रहा है.
अगर ये 25-50 कॉलम हो या 100 कॉलम हो या 500 कॉलम हो तो यही कुछ करेंगे क्या? यही लिखते बैठेंगे शाम तक? तलाश करो मोनिका, है इससे अच्छा तरीका? ढूंढो, मिलना चाहिए। घूमो स्टैक ओवरफ्लो पे, होता है। लास्ट क्वेश्चन, which continent, okay, which, not country, which continent has least surface area? हाँ जी, क्या पूछ रहा है वो? कहाँ है कॉन्टिनेंट और कहाँ है सरफेस एरिया? हो गया किसी से? ना, इट डजंट वर्क दैट वे नागेंद्र। परफेक्ट। किसी ने ऐसा तो नहीं कर लिया बहुत जल्दी से? यहाँ कॉन्टिनेंट सेलेक्ट कर लो और मिनिमम सरफेस एरिया सेलेक्ट कर लो फ्रॉम कंट्री टेबल। बहुत ही बढ़िया। पता है क्या बता रहा है ये बता रहा है कि मिनिमम सरफेस एरिया, कंट्री टेबल में मिनिमम सरफेस एरिया कहाँ लिखा हुआ है वो बता देगा। और कह रहा है कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है वो एक बता दो, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया तो एक ही आएगा। उसके अगेंस्ट एक बता दो, एक कौन सा बता दिया उसने जो सबसे पहले आया? ये देखो, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका था, तो सबसे पहले यही उठा के रख दिया। सरफेस एरिया में मिनिमम कैलकुलेट कर लिया उसने कि मिनिमम कौन सा होगा, वो आ गया। क्या ऐसे ही काम करते हैं? ये सरफेस एरिया कंट्री का लिखा हुआ है नागेंद्र, कॉन्टिनेंट का नहीं लिखा हुआ। और किसी से? मोनिका गलत कर रही हो। अरे गलत कर रही है लड़की, सब देखते हुए भी। ये कंट्री का मिनिमम सरफेस एरिया निकाला है तूने, कॉन्टिनेंट का नहीं है। कॉन्टिनेंट पूछ रहा है क्वेश्चन। लेकिन अगर कंट्री का पूछ रहा होता तो शायद ठीक किया है। ये कैसे होगा? ये नेस्टेड क्वेरी से होगा कैसे? अब इसने क्या लिखा है मोनिका ने? कॉन्टिनेंट बताओ और मिनिमम सरफेस एरिया बताओ फ्रॉम कंट्री। अब मिनिमम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया कैलकुलेट होकर के कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? वो तो यहाँ से पता चल जाएगा ना। अब इसने कहा कि वो तो कॉन्टिनेंट बताओ और उसका सरफेस एरिया बताओ फ्रॉम कंट्री टेबल। कहाँ? वेयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया कितना है जो मिनिमम सरफेस एरिया है कंट्री में। तो अब बताएगा ये वो कॉन्टिनेंट और वो सरफेस एरिया जो मिनिमम। लेकिन ये क्या बताया इसने? इसने बताया वो सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ अ कंट्री। और वो कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है? यूरोप को। इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप का सरफेस एरिया मिनिमम है ये। अभिलाषा सेम मिस्टेक। पता है करना क्या है? पता है करना क्या है? मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, चलो देखो। चलो यहीं से पकड़ते हैं। मैंने कहा कॉन्टिनेंट ले लो एंड क्या, सम ऑफ सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया का टोटल कर लो फ्रॉम कंट्री टेबल। वेयर शेयर कुछ नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप बाय कर दो इसको, ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। तो देखो मेरा क्वेरी क्या निकाल के लाएगा, क्या निकाल के लाया मेरा क्वेरी। अब बात ठीक कर रहे हो तुम, अब मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया कितना है। अब दोनों तरीके हैं, या तो ऑर्डर बाय करके लिमिट निकाल लो, समझ गए। ऑर्डर बाय सम ऑफ सरफेस एरिया एज कर लेते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया। ये है कॉन्टिनेंट ओशिनिया। एक तरीका ये हो सकता है, क्या दूसरा तरीका हो सकता है जो इससे बेटर है? हाँ वो भी हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो इसका रिजल्ट क्या है, इस क्वेरी का रिजल्ट क्या है। इस क्वेरी का रिजल्ट एक टेबल है, ये टेबल। मैं कहता हूँ इस टेबल का नाम रख देता हूँ मैं T1। तो दिस इज माय टेबल T1। बढ़िया, अब आ जाओ। और अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो बनी मेरी नेस्टेड क्वेरी। क्या चाहते हो, अरे क्या चाहते हो, सेलेक्ट कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट दिखा दो, और उसका टोटल सरफेस एरिया भी दिखा दो। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम दिस टेबल। अभी डबल नेस्टिंग, अच्छा डबल नेस्टिंग भी हो सकती है, हाँ हो तो सकती है। चलो वहाँ डबल नेस्टिंग पे नहीं जा रहे, अभी ज़्यादा फंस जाएगा। पर हाँ एक मेथड तो पक्का पक्का है ही। एक मेथड तो पक्का पक्का है ही। नेस्टिंग से भी हो सकता है, डबल नेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन अभी वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज। नाउ समबडी आस्क्ड, शुरू में किसी ने तो बोला था, किसने तो बोला था, OLAP एंड OLTP।
अच्छा, मोनिका योर क्वेश्चन इट वाज फाइन। करते हैं बातें। व्हाई कांट बी यू हैविंग हियर? वेयर अभिलाषा? इसमें तो अभी अच्छा, ये ऑर्डर बाय लिमिट से कर लिया। अच्छा, इनकेस नेस्टेड क्वेरी से करते हैं, हाँ कर सकते हो। नेस्टेड क्वेरी से कर रहे हो, कर सकते हो। हैविंग क्लॉज का यूज करो, इनफैक्ट हैविंग का ही करोगे, क्योंकि एग्रीगेटेड वैल्यू पे आएगी ना कंडीशन आपकी। आंसर ठीक आना चाहिए। अच्छा, बीच में ये स्किप हो गया था 11th क्वेश्चन, ये तो हो गया होगा वैसे सबसे। इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। 11th, the countries whose name starts with I and ends with A। किसी का ये क्वेश्चन अटका है 11th क्वेश्चन, और एवरीबॉडी इज डन विद दिस। ओके, आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी डिड दैट। Somebody's question was OLAP and OLTP. Now, remember, we started with some theory part and I asked you a question, what is a database and what is a data warehouse? And maybe I said that first things first, if I tell you this is basically a wrong question. See, any collection of data is a database. It is just that for organizational purposes, we have to organize it. It has to be an standard form and it has to follow, have some strict properties. So, for the sake of convenience, for the sake of, you know, for the sake of standards, for the sake of thumb rules. So that's when it becomes data warehouse. So in itself, this question is wrong. What is database and what is data warehouse? What could be the right question is, if somebody asks you what is a transactional database, what is TDB, and what is a data warehouse? That's where the real difference is. Where does the difference lie? Difference lies on several aspects. जो हम कर रहे हैं, we are analyzing a data for gaining some insights.
So data warehouse leads to OLAP. OLAP stands for Online Analytical Processes. Whereas transactional database exists for a very different thing. They lead to OLTP. What is OLTP? OLTP stands for Online Transactional Processes. अभी ये सब क्या होते हैं? डेटा वेयरहाउस आप देख चुके हो बहुत सारी चीज़ें। एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो आपको एनालिसिस करने के लिए दिया है, क्योंकि उनसे उन्हें सब कुछ इनसाइट्स चाहिए, एंड दे वांट टू टेक सम बिजनेस डिसीजन on the basis of that analysis. So that is all for which data warehouse exists. TDB exists for basically online activities, online transactions. All the Alibabas and Amazons and Flipkarts of the world. Think about it. An ATM machine is working, or maybe you are making a payment on Paytm, or maybe you are making a Google Pay. There is a database behind that, yes or no? Which is not very much focused on analysis, basically. ATM भी एक डेटाबेस के ऊपर ही काम कर रहा है। However, उसके एनालिसिस से बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका फोकस एनालिसिस नहीं है। What is the key factors? What is the key responsibilities there? What is the key things which that database should be focused on? The transaction should be accurate, it should be secure, it should be quick. Yes or no? Interface should be easy. Interface आसान होना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो कि कस्टमर if a customer is not very techy, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है आपका यूजर इंटरफेस। At the same times it should be secure also. इतना आसान भी नहीं हो कि किसी ने भी आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दिया। टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, तो उसका पर्पस entirely different है। It is not based, its focus is not on analysis, its focus is on transactions. So that's where OLTP and OLAP come in. I'll see to it if I have an illustration. I used to have an illustration. It is still somewhere with me. Here it is. So these are the key differences between data warehouse and a TDB. So हर aspect में on each dimension there is a certain difference. If I am calling them as dimensions, the aspects on which you are trying to differentiate. So the purpose of very existence, that itself is different. This database exists to conduct business transactions. This data warehouse, these things enter a data warehouse. It exists to conduct analysis and taking some business decisions. Let's talk about user, basically end user, the customer. You, me, everybody. They are the users. Who uses data warehouse? Who uses? The analysts on behalf of
managers and upper management, senior management, those who are going to take actual business decisions on the basis of your analysis. They are the users. Well, technology, of course, technology is DBMS in both the cases. So there you need to have a database management system. But what is the crunch? The crux is API or service side application. You know, the payment gateway, apps, whatever you are, ATM, in case ATM, the user interface of ATM. So that is of paramount importance. On the other hand, अच्छा यहाँ पर ओके लिखे दिया ही हुआ उन्होंने, ETL प्रोसेस इज यूजुअली होता ही नहीं है, और होता भी है तो उसका कोई विशेष रोल नहीं होता. इन दिस केस ETL बिकम्स इंपॉर्टेंट. ETL स्टैंड्स फॉर, पढ़ा होगा कहीं जॉब रोल्स में देख रहे हो, ETL प्रोसेस आना चाहिए. ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एक्चुअली ये एरोज उल्टे लगे हुए हैं यहाँ पर. ETL के केस में हो क्या रहा है, यू आर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एंड मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं. लाइक यू आर गैदरिंग डेटा फ्रॉम मार्केटिंग सर्विस. तो सर्विस के लिए आपने कोई एजेंसी हायर की हुई है, वो ऑफलाइन सर्वे फॉर्म भरा रहे हैं. कोई ऑनलाइन एजेंसी है, वो ऑनलाइन सर्विस करा रहे हैं. कोई और तरीका है, अब मे बी कुछ कस्टमर्स को इंटरव्यू कर रहे हो, टेलीफोनिक फीडबैक ले रहे हो. मे बी यू आर क्रिएटिंग, एनीबडी फ्रॉम MBA बैकग्राउंड heard of FGD? FGD is a technique in MBA. MBA में पढ़ाते हो आप लोगों को. ना, कोई भी नहीं. अच्छा, कैट वैट दिया किसी ने? नहीं दिया, किसी को नहीं काटा कीड़ा. कमाल हो गया. कैट जैट मैट कुछ तो दिया होगा. नोबडी. चलो कोई बात नहीं. तो देयर कैन बी वेरियस टेक्निक्स जिनसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. देन यू ट्रांसफॉर्म दैट डेटा. ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? वही जो आपके की पैरामीटर्स थे, दैट जब वो डेटा वेयर हाउस में लोड होगा उससे पहले उसको इंटीग्रेट करने के तरीके होने चाहिए. प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब डिफाइंड होने चाहिए. कॉन्स्टेंट्स, कौन कैर रहेगा, कौन वेर, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होनी चाहिए. एंड देन यू लोड. तो ETL process is important here in data warehouse. Yes, Shekhar. Focused group discussions. कहाँ से मिला है? गूगल मार्केट. ठीक है, बाकी किसी चीज में कोई क्वेश्चन? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी. फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस. यूजर को क्या दिखेगा? तो यूजर को क्या दिखता है TDB में? जब तुम पेमेंट करने पहुंचते हो तो क्या दिखता है तुम्हें? वेब पेजेस, मोबाइल ऐप्स, पेमेंट गेटवेज, यही तो होते हैं TDB के केस में. ऑन द अदर हैंड, अपने मैनेजर को कैसे बताते हो आप? जब एनालिसिस बता रहे होंगे तो एनालिसिस कैसे बताएंगे? यू विल नीड, व्हाट डू यू नीड? There is a new word there, business intelligence we are calling it. Basically visualizations. You need something to demonstrate how your analysis went. So it can be, if you can explain
your visualization in a tabular form, it can be a goddamn Excel sheet. Even that is business intelligence. तो अभी Tableau आएगा आप लोगों के. Cognos is outdated. Tableau is popular, and currently Power BI is gaining popularity like anything else. So that is another tool which is I'm not very handy with it, but that is also a good tool which is I have heard a mouthful about. तो यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे. अड्डा. Where did it go? Here it is. Database design. In design, well, you have already seen data warehouse. You need a kind of star schema, so where you can make static tables, and as and when you require, you can create one master table from different fact and dimension tables. तो यहाँ पर स्टार स्कीमा की ज़रूरत होती है. नाउ एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रिक्वायरिंग एन एनालिसिस, तो स्टार स्कीमा का कोई मतलब भी नहीं है. Why? Because what they will need, they don't need, क्योंकि एनालिसिस नहीं करना है. It is a TDB, it is not required for analysis, so they don't need to know what is your name, your gender, your age, your whatever. You are just a customer ID, a customer number for them. इस कस्टमर आईडी ने ये वाला कार्ड नंबर यूज किया है और इतने पैसे निकाले हैं. दैट्स इट, खत्म हो गया खेल. So star schema key is not required as long as you are not planning to conduct some analysis. As soon as you take this to conduct analysis, you start treating it as data warehouse. हाँ वही बता रहा हूँ शेखर. ट्रांजैक्शंस कंट्रोल करने के लिए टीडीबी चाहिए. अगर एनालिसिस करना है तो ये टीडीबी वाला जो आपका जो फैक्ट टेबल था, दिस इज बेसिकली अ फैक्ट टेबल. दिस इज वन फैक्ट टेबल. बाकी सब डायमेंशन टेबल्स कहाँ बैठे हैं? वो डेटा वेयरहाउस में बैठे हैं. तो मतलब बैठे कहीं नहीं, बैठे तो सब सर्वर पे हैं. कहने का तरीका है. बाकी सबको मैं कह रहा हूँ वो डेटा वेयरहाउस है, क्योंकि उनसे मैं एनालिसिस करूंगा. ये मेरा टीडीबी है, तो इट इज जस्ट फॉर ट्रांजैक्शनल प्रोसेस. सो दिस इज ओएलटीपी, दैट इज ओलैप. ठीक है मोनिका, इट वाज योर क्वेश्चन. आई होप ठीक ठाक बात समझ आ रही होगी कुछ. ऐसा तो नहीं लग रहा पूछ के गलती कर दी. हाँ चुप ही नहीं हो रहा. चलो ठीक है. तो ओके गाइस, सो दैट्स pretty much about SQL. सो जब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हम प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वेयर SQL के उस डिवीज़न के बारे में करते हैं जहां हम TCL और we are very much concerned with DCL and TCL, and this is the part where we are mostly concerned with DDL or DML or DQL. So this is the key difference. Now since you are analysts, so ट्रांजेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम इनकी भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं. ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता बहुत ज़्यादा इनमें. These are basically constants which which will control your transactions.
लाइक आप लोगों ने सुना होगा दैट एटीएम से कैश विड्रॉल पे इतनी लिमिट है, उससे ज़्यादा अमाउंट भर दोगे तो नहीं निकलेगा पैसा। वो कैसे पता उस मशीन को? तो दैट इज टीसीएल। यूपीआई पेमेंट आप किसी और को करना चाहते हैं, उस पर भी कुछ लिमिट है कि पर डे इतना से ज़्यादा नहीं कर सकते पर अकाउंट। तो वो तो आपके ऐप को कैसे पता है? वो भीम पे ऐप को कैसे पता है? सो दीज आर डीसीएल एंड टीसीएल query which control the transaction. एनालिसिस के लिए इतना मसाला बहुत है। मतलब इतना मसाला बहुत नहीं है, बहुत वो देर इज नथिंग लाइक सफिशिएंट, नथिंग इज सफिशिएंट। So there is always the next level, wrong choice of words, but anyway. Okay, let's do one thing. एक एक्सरसाइज दे दूं एसक्यूएल की आप लोगों को, मतलब जस्ट मस्ती के लिए करके देख लो। सबमिशन जैसा तो कुछ है नहीं, दिस इज ऑप्शनल मॉड्यूल फॉर यू। बट हाँ, पूरे वीक क्या करोगे देख लेना, क्या पता कुछ बात बनी जाए तुम्हारी। Okay, very fine. So give me a couple of minutes, this. I'll just send you something. Oh, when did I last send you a mail, Liz? Could you remind me? Meanwhile, you people can please drop a present. Everybody, please drop a present for your attendance purpose. Please don't miss anybody. Please drop a present for your attendance purpose. So, Yash, Shekhar, Monica, Abhilasha. Abhilasha, did I miss you? Abhilasha, could you drop me the mail ID, please, on the personal chat? Perhaps I missed your mail from my mailing list. Okay, others, Mother.
Anybody else? Jyoti, you are here. Manish, okay, fine. Abhishek, yes, okay, fine. John, okay. अभिषेक अभिषेक एंड अभिषेक सिंह। अरे दो अभिषेक पढ़ रहे हैं क्या एक की फीस में आप? नागेंद्र, हाँ तुम्हारी तो लग गई। अच्छा हाँ, दो बार प्रेजेंट लगा देना दोनों डिवाइस से, ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ओके गाइस, तो आई हैव सेंट यू गाइस a data set for SQL practice. So you will create a schema in MySQL, and there is a set of questions. You will try to answer that. How you set up a schema from available, you have data in CSV file and you want to set it up in MySQL. तो डर मत जाना, वो DDL जैसे लिख रहे थे ना, you can write DDL for 10-20 lines of data. When there is thousands of lines of data, you will not write DDL basically. You will create an Excel file or CSV file, you will automate some process and then you will create the database. तो वो procedure उसमें given है. So that would be something new to learn, a new aspect of DDL, how to define your data on your schema, on your DBMS. So आप इस लोग देख लीजिए, करके देखो, एक अच्छा एक्सरसाइज रहेगा. It will keep you busy through your leisure time on weekdays. Next week SQL तो नहीं करेंगे. Next week maybe you can tell me what you want to do. We can talk about two aspects. One is we can go ahead with uh, Excel, MS Excel, and if you think you are comfortable enough with Excel, maybe we can go ahead with starting your new module. और मे बी दामिनी was asking me, मैंने बताया नहीं है, मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, but I thought to I thought I should better talk to you people first. We can talk about some career assistance kind of thing, like some tips about your resume. And in my opinion, more than resume, what is more important is your LinkedIn profile. Only if you are willing to. Or maybe we can go ahead with Excel, or maybe whatever you say. हाँ एक्सेल, मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ. इफ यू, हाँ ओके, आई सी काइंड ऑफ मोस्टली मोस्टली अबाउट एक्सेल. ओके, ठीक है. Excel first and then after that resume and then after that LinkedIn. You are being greedy यार. चलो ठीक है. Okay, very fine. So don't worry about that. I am not saying we will we either we will do this or we will do that, and if not done, we will skip that. Eventually, we will do all these modules. We will come to all of them one by one.
So I'm just interested for now what to do next weekend because मेरे को थोड़ा सा सेशन आपका प्रिपेयर करना होता है। मेल रिसीव नहीं हुआ। Guys, would you check please? Has everybody received mail? Monica, could you check spam? Spam तो नहीं हो गया? I see you have a Gmail ID. तो Gmail कभी कभी स्पैम कर देता है ऐसा डेटा सेट वगैरह या जिप फाइल वगैरह मेल करते हैं। Please see it for once. Okay, maybe give it a few minutes. Give it a couple of minutes. Maybe you will receive. Check spam also. Okay, I see now that most of you, those who did not receive, now they have received. So you also, Nagendra and Monica, you will receive it soon enough. Don't worry. Anyway, you can ping me on the group if it is not received. So guys, okay, there is still time. There is still ample time. So maybe if you wish to shoot a few questions, we can utilize this time. Otherwise, I will rush to the kitchen and have lunch. I have nothing better to do, at least for half an hour now. Like we have country table in SQL. हाँ शेखर, आगे भी कुछ मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? You don't have to write everything. Session is broadly over. What I have to, what I had to teach, I have done that. So maybe you can switch on your mic and straightforward shoot the question. Hello. Hi, sir. Yes, Shekhar. Sir, yes. So, sir, like we had the country table in the SQL. Mm-hmm. So, जो content वाला question था ना, which continent has the least surface area? So, Least many surface of us area. got that.
हाँ हाँ. Yes, sir. So, sir, many like I got bluffed because उसमें एक column था surface area one column. So I thought कि ये surface area mention करके continent का, not the country. कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया, कॉन्टिनेंट का सरफेस एरिया कहाँ दिया है? हाँ सर, वही वही है ना कि आपने जब क्वेश्चन शुरू किया था तो यू सेड कि ये कॉन्टिनेंट का नहीं, ये कंट्री का सरफेस एरिया. राइट. हाँ, सो जैसे कि हमारी टेबल का नाम कंट्री है, सो जो इन्फॉर्मेशन दी है सारी की सारी वो सब कंट्री के बेस पे होगी ना सर, मतलब ऐसा नहीं कॉन्टिनेंट की हाँ, यस, इट इज सरफेस ऑल एरिया. अबाउट कंट्रीज. इट इज ऑल अबाउट कंट्रीज. ओके ओके. ये इंफॉर्मेशन कंट्री के बारे में रहता है. हाँ जी हाँ जी. यस सर, गॉट इट सर. ओके, एनीबॉडी एल्स? जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप करके देख सकते हो, बिकॉज every time Alok will not be there to help, you know, to work around these things. What you will have to do is you can explore things like you have this database. जब ऐसा हो, you can go to these things. There is information. If you click information of country table, you see this kind of thing will appear, and you see there are how many tabs here. This is info. Then there are columns. It is explaining many things. Columns, indices, triggers. What are the foreign keys used here? Then there is this settings kind of icon. You can make use of that also. If you click on that, it shows you what are the primary keys defined, what can be not null. This NN means that these columns cannot be null. Value has to be given. So these are constraints. So they can give you a certain idea what uh, what you can go ahead with. ठीक है जी, तो कंट्री टेबल में किस चीज़ का क्या मतलब है वो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं. Monica, if you are just asking me yes or no, I am telling you yes, there is another way. But I won't tell you. करो, मेहनत करो थोड़ी सी. चलिए, anything else, guys? I think all set for today. Could we wind up, or there is any further question?
Okay, very well, guys. So I will take that as a good to go signal. So very fine, guys. Have a happy week ahead. Bye bye and take care. Stay fit and fine. Rest well, revise well, and return strong. Bye, everybody. I'll see you next week, next weekend, same time. Till then, bye bye. And okay, very welcome, everybody. Bye, all. Signing off.